गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा वो मनी एंड क्रेडिट हम लोगों ने खत्म कर लिया है, क्रेडिट को खत्म कर लिया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो न्यू टॉपिक ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आज स्टार्ट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो द process by which less important raw material is converted into the more important product material with the help of large number of the machine and by the large number of the people is known as manufacturing. Manufacturing is the process by which less important raw material is converted into the more important product material with the help of the large number of the people and machines is known as a manufacturing. बच्चों मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें लेस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल को मोर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक, दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच लेस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल लाइक आयरन is converted into the more important bikes, car. So the process by which less important raw material is converted into the more important product material is known as a manufacturing. And this is in large amount and with the help of the large number of the people as well as large machines by through manufacturing process is performed. आज हम लोगों को जो कंप्लीट करना है तो वो पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग। फिर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या प्रॉफिट होता है, व्हाट आर द प्रॉफिट बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेस से कौन कौन सी चीजें क्या क्या प्रॉफिट होता है बाय मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट आर द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग से कौन कौन सी चीजों का प्रॉफिट होता है, वी हैव टू सी फॉर इट। मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट द वेल्थ प्रॉस्परिंग ऑफ द कंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग ये सेकेंडरी स्टेप का होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है दैट इज द सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी सेक्टर्स दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट द वेल्थ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी आइटम्स ऑफ द हायर यूटिलिटी एंड वैल्यू मटेरियल्स। सेकेंड, marketing and export of those products bring the revenue as well as the foreign exchange to our country which increase the per capita income as well as the national income of the country. नेक्स्ट, इट राइज पर कैपिटा इनकम। जब नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बढ़ेगी बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इनकम इंक्रीज होगी, तो इट विल श्योर दैट पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज and when per capita income will increase, then the life will become more better than the previous conditions. And manufacturing process create the job opportunity like labor to engineer. There is required of the jobs in the manufacturing process and life generally improves because if they will get the job and their income will increase, then it will sure that the life conditions या life जनरल improves, life condition improve होंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से बच्चों हम लोगों के बाकी सेक्टर्स भी improve होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो improve because of the industrial sector, because different types of the industrial product is required for the agriculture sector. For example, different types of the instruments from tractor to different types of the tilling machines, harvesting machines are also the part of the manufacturing process, as well as the different types of the fertilizers, that is pesticides and insecticides. All these are the part of the manufacturing process. All these things improve the production of the crops, and the production of the crops improve the condition of the farmers, and the condition of farmers increase the position of the country. तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस is also very helpful for the farmers and agriculture sector. New means of transport like
buses, cars, aeroplanes are also introduced because of the manufacturing process. Industrialization initiated the urbanization and modernization. As we know, industrializations increase the urbanization as well as the modernization because of many types of the industrial product are necessary for the modernization like computer, TV, radio, telegraph, mobiles are also the part of the manufacturing sector, but they are basic needs of the modernization. So in this way, our industrialization encouraged to the modernization and modernization depends on the industrialization. Industrialization promotes to the help of the removing of the different differences between the economically developed and backward areas because of the industrialization या manufacturing process की वजह से all the sectors, all the areas will generally increase, will generally improve. So the result of it will be that the industrialization also reduce the backwardness of the particular area. तो बेसिक मैं बच्चों आप लोगों से बातें कर रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ये मैन्युफैक्चरिंग इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग दैट दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच less important raw material is converted into the more important product material with the help of the machines and large number of the people in very large amount is known as manufacturing. And manufacturing process is very much important for the development of the country because manufacturing process improve the value of any materials, any raw materials, and result is we will get more revenue, more foreign exchange by exporting that things. It also helpful for the agriculture sector, transportation sector, and increasing the per capita income, development of the countries, modernization and urbanization. इन सब में से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेरी बिग इंडस्ट्रीज. व्हाट इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज इज द प्लेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड. Industry is the place where the manufacturing process is performed. What is manufacturing process? I have told you the definitions of the manufacturing process. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बच्चों industrialization is the establishment of the big factories, and big factories are the place where the manufacturing processes occurred. Means less important raw material is converted into the more important valuable product material. The place under which roof it is performed, that is known as industry. And establishment of the very big industries and their production is known as industrialization. ठीक है बच्चों. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लियर हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है. इम्प्रूविंग ऑफ द या एस्टेब्लिशिंग ऑफ द वेरी बिग इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट मटेरियल इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी अ मॉडर्न सिनेरियो, अ मॉडर्न टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. Because industrialization is the process, because manufacturing is the process which increase the value of material in more times. For example, I have told you कि 1 क्विंटल आयरन को अगर हम ड्रम मटेरियल के रूप में बेचते हैं तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये मिलेगा. लेकिन उसी को अगर हम प्रोडक्ट मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करके बेचते हैं तो उससे हमें करोड़ों रुपए भी मिल सकता है, लाखों रुपए. तो नॉर्मल है कि एक क्विंटल से एक बाइक बनाओ, बाइक 1 लाख रुपए की 1 क्विंटल की बाइक आराम से बिकती है. और नॉट बाइक मतलब हम मान लो और इम्पोर्टेंट चीजें बनाए के 47 नहीं बना डालें तो 1 क्विंटल आयरन से तो करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच लेस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द मोर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मटेरियल. तो इसी का रिजल्ट है कि बच्चों कि हमारे पास हम ही से आयरन लेता है फ्रांस, और हम ही से रॉ मटेरियल के रूप में आयरन लेता है, और हम ही को रॉफेल दे रहा है जिसमें 36 राफेल की कीमत 54,000 करोड़ रुपए हमसे वसूला जा रहा है. बाई द फ्रांस या ले रहा है अलग बात है. तो वसूला नहीं जा रहा, ले रहा है हमसे 54,000 करोड़ में 36 राफेल हम खरीद रहे हैं. तो जबकि हम ही से रॉ मटेरियल लेता है, हम ही से आयरन लेता है. तो ये इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना डेवलप नहीं हुआ कि हम लोग एक्सपोर्ट के बजाय पर उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तब चीज़ों को भेजें.
हम बच्चे बातें कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंडिया पे पहले तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन has increased very much. Industrialization, establishment of the industries ने बेटे इंडिया के पर कैपिटा इनकम या इंडिया के जीडीपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जीडीपी ऑफ इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। फॉर एग्जांपल के तौर पर इंडिया का प्रेजेंट टाइम पे 27% जीडीपी का 27% पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर। यू नो दैट अगर इंडिया 100 रुपीज इंडिया की जीडीपी है, तो आज भी बच्चों इंडिया का जीडीपी में हम 52 या 54-55% तक हम मोर देन 50% हम लोग सर्विस सेक्टर से गेन करते हैं, 15 to 17% हम लोग प्राइमरी सेक्टर से गेन करते हैं, और 27 to 30% के करीब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर से गेन करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज on it the secondary and primary sector is important, and it is also important on the secondary and primary sector, but मेरे कहने का मतलब है कि industrial sector is also very helpful to provide the job opportunity and to improve the values to import and export में हेल्पफुल होना। तो ये क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करता है और प्राइमरी सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। तो अब जो आते हैं कि इंडस्ट्रीज लोकेशन के लिए किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं, ठीक है। टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्री, व्हाट आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो जिसमें बहुत ढेर सारे फैक्टर बेटे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ढेर सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। जिसमें पहला फैक्टर होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, रॉ मटेरियल के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इन द ऑब्सेंस ऑफ द रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कैन नॉट रन। तो इसी का रिजल्ट है कि मोस्ट ऑफ, अगर रॉ मटेरियल के बेस पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र, because गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आर द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मतलब कॉटन इंडस्ट्री के लिए कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। कॉटन इज रिक्वायर्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। तो कॉटन कहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है? गुजरात एंड महाराष्ट्र में पैदा होता है। द रिजल्ट इज दिस, मोस्ट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज आर सेंट्रलाइज्ड और लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, दैट इज अहमदाबाद, विच इज नोन एज ए Manchester of the India. Ahmedabad is known as the Manchester of India because Manchester is the largest cotton producing city of the world, located in London. London in England. So just same like Ahmedabad is very much cotton producing, textile industry producing के बहुत ज़्यादा कारखाने वहाँ पर है, इस वजह से उसे इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज क्यों वहाँ पर है? क्योंकि वहाँ पर कॉटन एज ए रॉ मटेरियल, वहाँ कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है। Because of the availability of the raw material and favorable climatic conditions, the raw cotton is very much producing crop of the Gujarat and Maharashtra. Result is most of the raw material, because most of the cotton textile industries are located in Gujarat and Maharashtra because they can easily get the raw material for their industry. सेम यही इसी का एक रिजल्ट है कि मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुजरात एंड जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन बंगाल एंड उड़ीसा एज वेल एज असम बिकॉज देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द जूट। जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इस वजह से वहाँ जूट की मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वहीं पर है। या कहा जाए मोस्ट ऑफ द आयरन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिकॉज दीज आर द आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, स्पेशली छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में वी आर सीइंग दैट भिलाई, ठीक है। तो दीज आर एंड तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, या बालको नालको उड़ीसा में है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे कहने को मतलब रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रॉ मटेरियल इज द बेसिक थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई द रीजन रॉ मटेरियल इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। दूसरा जो पॉइंट आता है पावर सप्लाई। रॉ मटेरियल के बाद आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी। पावर सप्लाई इज आल्सो
वेरी नेसेसरी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बेटे वेरी बिग इंडस्ट्रीज, वेरी बिग फैक्ट्री नहीं चल सकती हैं, बिकॉज बिग फैक्ट्री रिक्वायर्ड वेरी बिग machines, and to run the machines there is need of the power, and in the absence of power the machines cannot work properly, and result is that industrial का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसी वजह से मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बेटे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई होती है वहीं पर ज़्यादा एस्टेब्लिश होती हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात इज फास्ट डेवलपिंग स्टेट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। फिर इसके बाद बच्चों वाटर सप्लाई, इट इज ऑल्सो वेरी बेसिक नेसेसरी। वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरी टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, खासकर जूट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही रिजल्ट है कि जूट इंडस्ट्रीज जो है वो रिसरा से लेकर के कोलकाता के तक, क्योंकि लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3 किलोमीटर चौड़ाई पे हुगली नदी के तट पर बहुत ढेर सारी जूट इंडस्ट्रीज हैं बिकॉज ऑफ द प्लेंट्री अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स टू कैरी द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस टू द इंडस्ट्रीज, एंड प्रोडक्ट मटेरियल को इंडस्ट्री से मार्केट या डिफरेंट प्लेसेस के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, दैट इज आल्सो द नेसेसरी। ट्रांसपोर्टेशन मार्केट शुड बी आल्सो, and site of the climatic conditions should be suited for that particular industry। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं विच आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इसके बाद नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स हम बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे नॉन जोग्राफिकल फैक्टर के साथ। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बेटा आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।